اس کے بعد نہایت ہی اہم آیت، جامعہ آیت، دعوت دین کے حوالے سے آپ سمجھ لیجئے یہ اکیلی آیت اگر قرآن میں ہوتی تو بالکل کافی ہوتی۔ آیت نمبر 125، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ۔ اور اے نبی اب سنیے، آپ دعوت دیجئے اپنے رب کے راستے کی طرف دانائی سے، بالحکمہ حکمت کے ساتھ، والموعظۃ الحسنہ اور اچھی نصیحت کے ساتھ، وجادلہم باللتی ہی احسن۔ اب اگر کچھ لوگ نہ مانیں، کٹ حجتی پر اتر آئے، دلائل مانگنے لگے، بحث کرنا چاہتے ہیں، تو آپ ان سے بحث کریں، جادلہم بحث کریں، مجادلہ کریں، باللتی ہی احسن بڑے اچھے طریقے سے۔ اب یہاں پر آپ دیکھ لیجئے دعوت کس طریقے سے دی جا سکتی ہے، اس کے سلسلے میں تین جو کیٹیگریز ہیں، تین جو پائیدان ہیں وہ بیان کر دیے گئے ہیں۔ پہلا کیا ہے؟ پہلا ہے کہ اپنا جو رب ہے، اس کا جو دین ہے، اس کی طرف لوگوں کو دعوت دے حکمت کے ساتھ۔ پہلا پائیدان۔ حکمت کیا ہے؟ حکمت آپ سمجھ لیجئے یہ پری پلاننگ ہے۔ آپ نے دعوت پہنچانی ہے، اس کا آپ نے ایک ٹارگٹ رکھنا ہے قبل از وقت۔ پھر یہ دعوت آپ کس موقع پر دیں گے، اس کا بھی آپ نے انتخاب کرنا ہے۔ کس طرح دیں گے، اس کا بھی انتخاب کرنا ہے۔ جس شخص کو دعوت دینی ہے وہ شخص کس معیار کا ہے، اس معیار کو بھی آپ نے ملحوظ خاطر رکھنا ہے۔ پھر اس کے ساتھ کون سے کلام آپ کو کرنے ہیں، کتنا لمبا کلام کرنا ہے، کتنا چھوٹا کلام کرنا ہے۔ وہ شخص جس معیار کا ہے، اس کے معیار کے مطابق آپ پہلے سے ہی پلان کریں، اس سے کہتے ہیں حکمت۔ ایسے ہی الل ٹپ بنا کسی وقت کے انسان کام میں مصروف ہو، اس پر آگ ٹپکنا، اس کو تنگ طلب کرنا، پھر دعوت دینا، یہ انبیائی طریقہ کار نہیں ہے۔ بلکہ اس میں یہاں تک صحابہ کی بار فرماتے ہیں کہ بھئی اگر انسان کام میں مصروف ہو، بھئی اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ اس وقت اگر اسے دعوت دیں گے وہ دعوت سے اکتا جائے گا، اس سے یہ باری گرا محسوس ہوگا، اس سے اچھا نہیں لگے گا، تو دعوت کو آپ بدنام کریں، ایسا کرنے سے کلی طور پر اجتناب کریں۔ یہ ہے حکمت۔ اب دیکھ لیجئے آپ، قرآن سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہے، یہ کلام اللہ ہے، یعنی کہ اللہ کلام کر رہے ہیں۔ لیکن اللہ کن کے ساتھ کلام کر رہے ہیں؟ اللہ انسانوں کے ساتھ کلام کر رہے ہیں۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ حقیقتاً اپنے جلال کے ساتھ بات کرتے تو مجھے نہیں لگتا ہے کسی کی مجال ہم میں ہوتی کہ ہم پھر ذرا برابر بھی ادھر سے ادھر ہو جائے یا ادھر سے ادھر ہو جائے۔ ہماری حیثیت ہی نہیں ہوتی کہ پھر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کے سامنے ٹک پائیں۔ لیکن اگر آپ دیکھیں گے قرآن پاک میں جتنا کچھ بیان کیا گیا ہے، یہ انسانوں کے معیار کے مطابق، اس کی عقل کے مطابق بیان کیا گیا ہے۔ تو سب سے پہلی بات یہاں پر بلکہ اصول اخذ کیا جا سکتا ہے کہ مخاطب کے ساتھ اسی کی زبان میں بات کی جائے، اسی کے معیار کے مطابق بات کی جائے۔ اب کوئی چھوٹا بچہ ہے، اس سے آپ چھوٹے بچوں والی باتیں کہیں، اسی کی طرح آپ اسے دعوت دیں۔ کوئی بڑا عالم ہے، کوئی بڑا سنجیدہ انسان ہے، اسی کے معیار کے مطابق بات کریں۔ سب لوگوں کو دعوت کے ایک ہی طریقے کار سے مت ہانکیں۔ اس کے بعد اگر آپ دیکھیں گے قرآن پاک جب کوئی اپنا خاص مدعا بیان کرنا چاہتا ہے تو پہلے آس پاس کے حالات و واقعات کی طرف انسان کی توجہ مبذول کراتا ہے۔ اسے کہتے ہیں بھائی ذرا ادھر دیکھو، ذرا ادھر دیکھو، ذرا اپنے اندر دیکھ لو، جھانک لو۔ بھائی مجھے لگتا ہے اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے، اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت ثابت ہوتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا، بلکہ دوسرا اصول یہاں سے عکس کیا جا سکتا ہے کہ مین بات جو ہے، مین کلام جو ہے، جو آپ کسی کو سمجھانا چاہتے ہیں، وہ مین کلام پہلے ہی مت تھوپیں، بلکہ اس کو سمجھانے کے حوالے سے آس پاس کے حالات و واقعات میں شواہد سے، آثار سے سہارا لیں، ان کی مدد لے لیں، پھر سننے والے کو سمجھائیں بھئی اصل میں مطلب یہ ہے۔ اس کے بعد
अहम बात, तीसरी बात, जब आप किसी को दावत दें तो इखलाकी हुदूद जो हैं इनका खास ख्याल रखना है। अगर मुखातिब मानता भी नहीं होगा, कजरवी पर उतर आता होगा, तब भी दाई का मसला यह है कि वो कभी भी अपने आप को इखलाकियात से नहीं हटाता है। आप देख लीजिए, कुरान पाक ने उन लोगों से मुकालमा किया है जिन्होंने नबी अलैहिस्सलाम के ऊपर गंदगी और गलाजत बरसाई, बिलफैल बरसाई, आप अलैहिस्सलाम के ऊपर ताने कसे, कितनी अज़ियत उनको दे दी। उन लोगों से जब कुरान हम कलाम होता है, अब जरा देखना कभी कुरान ने कोई बद इखलाक बात कही है या किसी ने ऐसी जुर्रत की? अपने मुतरज़िम भी आज तक ये बात कहने से कासिर हैं कि कुरान में कोई ऐसी बात है जिससे हम कह सकते हैं माज़ल इखलाक सोज है। हालांकि मुखातिब किन लोगों से है? जो बड़े कट्टर दुश्मन हैं साहिब किताब के, उन लोगों से मुकालमा करती है किताब बड़े बड़े रहीमाना अंदाज में, बड़े शफीकाना अंदाज में, और दाई का भी यही किरदार होना चाहिए। उसके बाद अब अगर मुखातिब मानने पर तैयार नहीं होगा, गालम गलौज पर आ जाए और आपको लगे ये मानने वाला नहीं है, तो वहां पर क्या करना चाहिए? वहां पर वही नहीं बैठना चाहिए, बल्कि वहां पर क्या करना चाहिए? वइज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा, उसे सलाम करना चाहिए और अपना जो दामन है उसे समेट कर अपने आप को वहां से भगाना चाहिए। क्योंकि दाई का मसला ही क्या है? वो मुसल्लत करदा मसला नहीं है। आप किसी पर मुसल्लत कर दिए जाएंगे, हालांकि आप सही बात कह रहे हैं, बात तो आपकी गलत नहीं है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप उस किसी पर मुसल्लत हो जाओगे, नहीं। इसका मतलब यह है कि आपने उस शख्स तक सिर्फ बात पहुंचानी है, बाकी वो माने या ना माने वो अल्लाह तबारक व तआला और उस बंदे का मसला है। तो ये चंद बातें दावत दीन के हवाले से निहायत अहम हैं। और जो हिकमत असल में मैं बयान कर रहा था, ये जो यहां पर बता दिया गया है, उदू इला सबीली रब्बिका बिल हिकमा, अल्लाह तबारक व तआला की जो दावत है, उसका जो दीन है, उसकी तरफ लोगों को हिकमत के साथ बुलाइए। हिकमत यही उसूल है, इन्हीं की पासदारी करनी चाहिए। अच्छा, आजकल के जमाने में हिकमत यह भी है कि आप उन तमाम जराया का इस्तेमाल करें जिन जराया से आपकी बात ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सकती है। इसमें आप आजकल सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर सकें दावत के हवाले से। इस वक्त जो प्लेटफॉर्म हम इस्तेमाल करते हैं, ये भी आप समझ लीजिए ये हिकमत का एक मजहर है। कोविड-19 का जमाना आ गया, लोगों को एक दूसरे से मिलने नहीं दिया गया। अब हिकमत का तकाजा क्या है? हिकमत का तकाजा ये तो नहीं है ना कि आप दावत दीन को छोड़ देंगे। हमारी ये जो कोशिश है, अल बयान की ये जो कोशिश है, ये असल में इसी हिकमत का मजहर है कि भाई अगर बाकी रास्ते मजदूद कर दिए गए, हमारे पास बाकी वसाइल तो हैं, इनका इस्तेमाल करें। आजकल की नौजवान कम्युनिटी बिल्कुल मुख्तलिफ है, तो इन नौजवान लोगों तक किस तरीके से पहुंचा जाए, किन बातों से पहुंचा जाए, यह हिकमत का तकाजा है। और इसी हिकमत के साथ हमें लोगों को अल्लाह तबारक व तआला के दीन की तरफ बुलाना चाहिए। और उसके बाद वल मौइज़तिल हसना, जब आप बात कहें तो बेहतरीन बात कहें, शफीकाना अंदाज में बात करें। पहले उससे ये तसव्वुर दिलाएं कि भाई हम आपके खैर ख्वाह हैं, हम आपसे किसी चीज के तलबगार नहीं है, ऐसी बात कहें, रजील मत करें उससे। बाज लोग जब मसनंदे खिताबत पर बैठ जाते हैं तो वो लोगों को हकीर समझते हैं और अपने आप को आलिम समझते हैं। नहीं, बात जिससे भी करें उसकी इज्जत रखें, उसकी लाज रखें, बल्कि अगर उसकी इज्जत कम है उसकी इज्जत को दो बहाना करें, उससे कहें कि वो अल्लाह की जनाब में कितना मुअज़्ज़ज़ और मुकर्रम है। और हकीकत भी यही है, अल्लाह तबारक व तआला की अपनी जो तख्लीक है, इंसान तो इंसान, बाकी मखलूकात भी जो हैं वो अल्लाह को कितनी प्यारी होंगी, क्योंकि अल्लाह ने उनको खुद तख्लीक किया है ना। अब इंसान का मसला है जिसे अशरफुल मखलूकात करार दिया है, ये अल्लाह तबारक व तआला को कितना प्यारा होगा, अगर ये कितना नालायक होगा, रहज़न होगा। तो इस लिहाज से तमाम मुअल्लिमीन को भी चाहिए कि बात जब करें इज्जत के साथ करें, इज्जत नफ्स को ठेस ना पहुंचाएं, हकीरना अल्फाज ना कहें। इसी का मतलब है मौइज़तिल हसना, बेहतरीन खिताबत का सहारा ले लें।
उसके बाद वजादिलहुम बिल्लती ही अहसन। अब अगर आपको किसी से बहस करना भी पड़े, मुजादिला करना भी पड़े, जिसे हम आजकल की टर्मिनोलॉजी में मुनाजराबाजी कहते हैं, इसका भी सहारा आपको लेना पड़े, तो कुरान ने क्या कहा, ये करें आप, लेकिन हिया अहसन, अच्छे तरीके से। आजकल भी मुनाजराबाजी होती है, लेकिन सोशल मीडिया पर होती है, जहां पर हम एक दूसरे को जानते तक नहीं होते हैं, और फिर एक दूसरे को किन किन अलकाबात से हम नवाजते हैं वो हम सब जानते हैं। इस जमाने में याद रहे, सोशल मीडिया मुनाजराबाजी का कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, क्योंकि सोशल मीडिया पर कोई भी इंसान कुछ भी बक सकता है। वहां पर आपको मालूम थोड़ी है कि जो इंसान बात कर रहा है किस इल्मी लेवल का है। इस लिहाज से सोशल मीडिया पर एक तरह भी मौजूदात को छेड़ना, ये भी आप समझ लीजिए, ये भी एक अहमकाना अमल है। मुनाजराबाजी के असूल हैं, ये असूल आजकल की दुनिया बिल्कुल फलांग देती है। आप देख लीजिए, बहस व मुबाहिसे का मतलब क्या होना चाहिए था, व्हाट इज राइट, सही क्या है, न कि हु इज राइट। ये दो चीजें हैं, अलग अलग चीजें हैं। एक है हु इज राइट, दूसरा है व्हाट इज राइट। मुनाजराबाजी का सम्मम बोनस, इसका ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए था, व्हाट इज राइट, न कि हु इज राइट। जब आप इस बात पर आएंगे ना कि हु इज राइट, उसमें तो लाजिम है किसी दूसरे को रॉन्ग करार देना है, और जब आपने उसको रॉन्ग करार दे दिया तो उसका जो इज्जत नफ्स है उसको ठेस पहुंच जाएगी, और जिससे वो तस्लीम करने के लिए काबिल कबूल ही नहीं है। और फिर अपने उसी इज्जत नफ्स को बचाने के लिए वो पता नहीं किन किन इस्तेमालात से काम लेता है, जिनकी कोई हैसियत ही नहीं होती है। और यही बुनियादी वजह है कि फिर हम देख लेते हैं सोशल मीडिया पर एक साहब एक बयान देते हैं, दूसरा देते हैं। अब उस दूसरे के दूसरे बयान को पहला बंदा फिर से लेता है और तीसरा बयान मारता है, और ये सिलसिला आगे बढ़ता है। नतीजतन कोई हल सामने आता ही नहीं है, बल्कि हम जैसे सादा लो इंसानों को ये लोग फिर क्या करते हैं, मुखस्सम में डाल देते हैं, परेशान करते हैं। हकीकत क्या है ये किसी को नहीं पता है। साइंस का उसूल है, आप देख लीजिए साइंस ने क्यों तरक्की इतनी की। साइंस का उसूल क्या है, साइंस का उसूल यह है कि व्हाट इज राइट, और व्हाट इज राइट को ढूंढते किसी भी साइंटिस्ट की तहकीर नहीं की जाती है। आप देख लीजिए, न्यूटन के शागिर्द हैं आइंस्टाइन ने कई सारे मामलात में अपने उस्ताद को गलत पाया, लेकिन क्या उस से न्यूटन की हैसियत कम हो जाती है? कतई तौर पर नहीं। तो जब आप इस चीज में पड़ जाएंगे ना, हु इज राइट, तो फिर ये होना लाजमी है। असल में मुनाजराबाजी करें, इसमें कोई कबाहत नहीं है, लेकिन विद द ऑब्जेक्टिव व्हाट इज राइट, न कि हु इज राइट। हम अपने पूरे लाहौल लंगर को साथ लाते हैं, अपने पूरे हल्के यारान को साथ लाते हैं, और फिर एक दूसरे को बड़े खबीस अलकाबात से नवाजते हैं, बड़ी शरारत होती है, गुस्से में होते हैं, थोपना चाहते हैं अपना नुक्ता किसी के ऊपर। यह मुनाजराबाजी के उसूल कतई तौर पर नहीं है। आप देख लीजिए, यहां पर 3 पायदान बता दिए गए हैं। सभी में रब्बी का बिल हिकमा, यह एक पायदान है, वल मौइज़तुल हसना दूसरा पायदान है, और जादिलहुम बिल्लती ही अहसन तीसरा पायदान है। अब बाज लोग हम में से ऐसे होते हैं जिन्हें आप महज अच्छी बात कहेंगे वो उसी को पकड़ लेते हैं, बल्कि उनके सामने अगर कोई नेक और शरीफ बंदा गुजरता है वो उस नेक और शरीफ बंदे से ही इबरत हासिल कर लेते हैं। उन्हें मजीद कुछ कहने की जरूरत भी नहीं होती है। उन्हें किसी अस्पताल में ले जाएं, किसी ऐसी मजलिस में ले जाएं जहां पर अल्लाह तबारक व तआला का गजब नाजिल हुआ होगा, वो उसी से सबक हासिल करेंगे। ये कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जिन पर सिर्फ हिकमत काम करती है। ये देखते हैं आसपास सूरत हाल क्या है। उसके बाद वल मौइज़तुल हसना, ये वो लोग हैं जिन्हें कुछ कहना होता है, जो समझना चाहते हैं। उसके बाद जादिलहुम बिल्लती ही अहसन, ये वो लोग हैं जो चाहते हैं कि उनके जो अकल के दरीचे हैं उन्हें मजीद खोला जाए। ये ऐसे 3 तबकात भी आपको मिलेंगे। आपको हजरत अबू बकर सिद्दीक मिल जाएंगे, बिला चूनो चरा नबी अलैहिस्सलाम को देखने से ही ईमान ले आए।
آپ کو بعض ایسے بھی ملیں گے جو کہیں گے ذرا مجھے دکھاؤ یہ کتاب کیا ہے، اس کے اندر کیا کہا گیا ہے. اور پھر آپ کو ایسے لوگ بھی ملیں گے جو آئیں گے دفتر میں، پھر سوالات پوچھیں گے، سوالات کے جوابات حاصل کر لیں گے، اس کے بعد دعوت کا اعتراف کریں گے. یہ تینوں پائیدان آپ سمجھ لیجئے بالترتیب تینوں لوگوں پر ان کا اطلاق ہوتا ہے.